وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ دوسرے روز شام تک تنظیم کے سربراہ کی طرف سے احکام مل گئے اور اس نے گرین سگنل دے دیا تھا۔ ایک بار پھر ہنگامی میٹنگ طلب کر لی گئی۔ جیکسن اور گربجن سنگھ حسب توقع خاصے پرجوش نظر آ رہے تھے۔ دونوں ہی نے میری تجویز قبول کیے جانے پر مبارکباد دی۔ میٹنگ میں یہ طے کیا جانا تھا کہ حکومت پر پہلی ضرب کب، کہاں اور کیسے لگائی جائے۔ اس ضمن میں مختلف تجاویز زیر غور آئیں اور طریقہ کار اور لائحہ عمل پر زوردار بحث ہوئی۔ کسی بھی تجویز پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں انتہائی تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوگی، میں نے کہا، اور ہمارے پاس ایسے کمانڈوز ہیں جنہیں فوجی انداز میں تربیت دی گئی ہے۔ اور سالار وحید الدین بولا، تنظیم کے ارکان کو تربیت دینے کی ذمہ داری اسی کو تھی۔ اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ میں نے معلوم کیا 11 کمانڈوز ہیں، ایسے جو یقیناً آپ کے معیار پر پورا اتر سکتے ہیں۔ بہت کم ہیں، میں بولی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیک وقت کئی جگہ دشمن پر ضرب نہیں لگا سکتے۔ لیکن اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ سالار اعلیٰ قدیر بیگ نے سوال کیا، اور میٹنگ اسی کی صدارت میں ہو رہی تھی۔ ایک ساتھ اگر کئی جگہ پر اچانک حملہ کیا جائے تو دشمن گھبرا جاتا ہے، میں نے وضاحت کی، اور میری تجویز ہے کہ کمانڈو دستے کی سربراہی کا فرض مابلہ خاتون کو انجام دیں، نگران اعلیٰ نے امرت ناتھ نے کہا، اور متفقہ رائے سے یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور اس لیے میں خاموش رہی اور ذرا توقف سے بولی، میں کمانڈوز کے اس دستے میں چند افراد کی شمولیت اور چاہوں گی۔ اور پھر میں نے سالار گربجن سنگھ، سالار اکبر اور عادل کے نام لیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ پوری قوت ایک ہی محاذ پر لگا دی جائے یا صرف لڑاکا افراد ہی ساتھ ہوں، سوچنے اور بر وقت حملہ کرنے والے دماغ بھی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اب تک اس سلسلے میں جتنی بھی تجاویز پیش کی گئی ہیں، میں کسی سے متفق نہیں ہوں۔ شہری حدود سے ہٹ کر کوئی تجویز زیر غور نہیں آئی، اور پولیس ہیڈ کوارٹر، CID کے دفتر وغیرہ پر حملہ کرنا حکومت کے لیے زیادہ تشویشناک نہیں ہوگا۔ پہلا حملہ ایسا ہونا چاہیے کہ حکومت بالبلا کر رہ جائے۔ کچھ دیر تک اجلاس کے کمرے میں سکوت چھایا رہا اور سبھی کے چہروں پر غور و فکر کی پرچھائیاں نظر آنے لگی۔ اور پھر اچانک سالار اکبر بول اٹھا، اطلاعات کے مطابق دہلی اور غازی آباد کے درمیان حکومت نے گزشتہ دنوں ایک بڑا ایمونیشن ڈپو قائم کیا ہے، اور اس سلسلے میں تمام ضروری معلومات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر اس ڈپو کو اڑا دیا جائے تو۔ سالار اکبر کی یہ تجویز مشکل اور خطرناک ہونے کے باوجود میری نظر میں بہترین تھی، اور سب سے پہلے میں نے ہی اس تجویز کی تائید میں آواز بلند کی، اور پھر اس پر بحث شروع ہو گئی۔ تجویز کے قابل عمل ہونے کے ہر پہلو پر غور کیا جانے لگا، اور اس سے سبھی کو اتفاق تھا کہ حکومت ایمونیشن ڈپو کی تباہی پر بوکھلا جائے گی۔ خاصی دیر غور و خوض کے بعد یہ تجویز منظور کر لی گئی، اور تیاری کے لیے صرف ایک دن کی مہلت کافی سمجھی گئی۔ اس کے بعد اجلاس کی باقاعدہ کارروائی ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ چائے پینے کے دوران میں جیکسن کو میں نے رک جانے کے لیے کہا، اور ابھی ایک 4 رکنی غیر رسمی میٹنگ باقی ہے، میں مسکرا کر بولی۔ عادل میرے قریب ہی تھا اور کہنے لگا، اگر اس 4 رکنی میٹنگ کو 5 رکنی بنا دیا جائے تو پنڈت مکند بہت ممنون ہوگا، اور وہ یقیناً سمجھ گیا تھا کہ 4 رکنی میٹنگ کا کیا مطلب ہے۔ پنڈت بال کمند کی پرارتھنا سویکار کی جاتی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ چائے پینے کے بعد سب اٹھ کھڑے ہوئے، اور ذرا ہی دیر بعد سالار اکبر کے کمرے میں وہ 5 رکنی غیر رسمی میٹنگ شروع ہو گئی، اور جس کی ایک رکن میں بھی تھی۔ میرے اور سالار اکبر کے علاوہ میٹنگ میں جیکسن، گربجن سنگھ اور عادل شریک تھے۔
मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में ज़्यादा भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं। मैंने गुफ्तगू शुरू की। देखें जी, आप किसी और को साथ लेकर चले कि नहीं? मैं ज़रूर चलूँगा। और गुरबचन सिंह बोला, क्या खबर गुरबचन सिंह जी, हम में से ये किसी को साथ न ले चलें? सलार अकबर ने चुटकी ली। जी नहीं, वो पहले ही कह चुकी हैं कि सोचने और बर वक्त फैसला करने वाले दिमाग भी चाहिए। और गुरबचन सिंह ने जल्दी से कहा, फिर तो गुरबचन सिंह जी, आपने खुद ही अपना खिलाफ फैसला दे दिया और इन्हें सोचने और बर वक्त फैसला करने वालों की ज़रूरत है, और आप शायद इनकी बात समझे नहीं। सलार अकबर ने गुरबचन सिंह पर ऐसी चोट की कि वह खसिया कर रह गया। और आप साथ ज़रूर चलेंगे गुरबचन सिंह जी, चाहे सलार अकबर जाएं या ना जाएं। और मैंने हंसते हुए बोली, हाँ और क्या जी, और बे दूल्हे की बारात कब अच्छी लगती है। माफ़ कीजिएगा गुरबचन सिंह जी, आप दूल्हा नहीं बाराती हैं। और जैक्सन भी गुरबचन सिंह को छेड़ने से बाज ना आया। फिर आपकी उम्र भी अब दूल्हा बनने की नहीं रही। चलो जी, दूल्हा ना सही बाराती सही। और इस नोक झोंक के बाद संजीदा गुफ्तगू शुरू हो गई। तय पाया कि इस मुहिम में हमारे साथ सलार अकबर, गुरबचन सिंह और आदल के अलावा सिर्फ 5 कमांडोज शरीक होंगे। और फिर ये गैर रस्मी मीटिंग बर्खास्त हो गई। सलार अकबर एम्यूनेशन डिपो के महल्ले वकूअ से पूरी तरह आगाह था। अगले ही रोज़ रात के वक्त जब हम 9 अफराद एक बंद वैन में तमाम तर ज़रूरी तैयारियों के साथ दहली की हदूद से बाहर निकल रहे थे, तो मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मेरे ज़हन में जाने क्यों तरह तरह के खदशात और अंदेशे जन्म ले रहे थे। अचानक फिजा एक धमाके से गूंज उठी और मैं उछल पड़ी। उस धमाके ने मेरे असाब को झंझोड़ कर रख दिया और वैन का पिछला हिस्सा एक तरफ झुक गया था। मगर वो धमाका सिर्फ टायर ब्रस्ट होने का नहीं था और मेरे ज़हन में खतरे की घंटियां बजने लगी। वैन को रोकने के लिए यकीनन पिछले टायर पर फायर किया गया। आदिल ड्राइविंग सीट पर था और उसके साथ आगे सलार अकबर बैठा था। मेरे साथ वैन के पिछले हिस्से में गुरबचन सिंह के अलावा 5 कमांडोज थे और वो 5 ही एकदम अलर्ट हो गए। और वैन के अगले और पिछले हिस्से के दरमियान जो छोटा सा चौकोर खला था, मुझे इसमें लम्हा भर को सलार अकबर का चेहरा नजर आया। और फिर वैन सड़क से उतर कर कच्चे रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ी और उसके बाद एक साथ कई बातें हुई। जो कमांडो वैन के अकबी दरवाजे के पास बैठा था, उसने जल्दी से वो दरवाज़ा खोलकर चलती वैन से बाहर छलांग लगा दी और दूर तक कच्चे में लड़कता चला गया। और कमांडोज की तरबियत इसी अंदाज में होती है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल का मुकाबला कर सकें। वैन के रुकते रुकते बाकी 4 कमांडो भी पोजीशन ले चुके थे। गुरबचन सिंह और मैंने भी देर नहीं की और सड़क के किनारे हमवार ज़मीन पर सीनों के बल लेट कर हमने उस तरफ जहन्नम के दहाने खोल दिए जिधर से हमारी अंदाजे के मुताबिक पहला फायर हुआ था। और खासे फासले पर हमें एक जीप और ट्रक नजर आ गया। जवाबी फायरिंग में भी ताखीर नहीं हुई और उसके बाद बाकायदा फायरिंग का तबादला शुरू हो गया और फिजा पे दर पे धमाकों से गूंजने लगी। मेरी पुशित से जो थैला बंधा हुआ था उसमें दस्ती बम भी थे और मेरे करीबी गुरबचन सिंह ज़मीन पर लेटा हुआ फायर कर रहा था और मैंने उसे मुखातब किया, मैं अभी आती हूँ, आप कहाँ जा रही हैं? और उसने मेरी तरफ देखे बगैर सवाल किया और फिर फायरिंग करने लगा। और इसी तरह दुश्मन के फायर का जवाब देते रहें और मेरी फिक्र ना करें। ज़रा वक्फा हुआ तो मैं बोली और मैं वहाँ रुकी नहीं और जीप और ट्रक सड़क पर रुक चुके थे और ये मैंने पहले ही देख लिया था। दुश्मन उन्हीं की आड़ लेकर गुरबचन सिंह को छेड़ने की कोशिश कर रहा होगा और यह समझना मेरे लिए दुश्वार नहीं था। मैं एक लंबा चक्कर काट कर दुश्मन के अकब में पहुंच गई और फायरिंग उस वक्त तक जारी थी। और मेरी पहली नज़र उन लोगों के लिबास पर पड़ी और वो पुलिस की वर्दियों में थे और मेरे अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद खासी थी। उसके अलावा उनके पास गालबन असला भी खासा था और वो देर तक मुकाबला कर सकते थे। और मैं उनके बहुत करीब पहुंच गई और मैंने बहुत एहतियात से काम लिया और वो देर तक मुकाबला कर सकते थे। वो मेरी तरफ मतवज्जा ना हो जाएं और किसी भी किस्म की जल्दबाजी मेरी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है और इसका मुझे पूरी तरह एहसास था। लेटे लेटे ही मैंने अपने पुछ से बंधा हुआ थैला खोला और उसे अपने करीब रख लिया। अपनी गन भी मैंने शाने से उतार ली और दुश्मन को संभलने का मौका दिए बगैर मैं उसे नीस्त व नाबूद कर देना चाहती थी। थैला खोलकर मैंने कई दस्ती बम निकाल लिए और फिर वो लम्हे बहुत क़यामत खेज थे जब दुश्मनों के जिस्म फिजा में चीथड़े बनकर उड़े
और एक तूफान आकर गुजर गया और पीछे लाशों के टुकड़े छोड़ गया। गासिब हुकूमत के टुकड़ों पर कुत्तों की तरह पलने वालों से मुझे कोई हमदर्दी नहीं थी, और जंग ख्वाह बड़े पैमाने पर होकर महदूद सीता पर, और उसमें भी यही सब कुछ होता है, मारो या मर जाओ। और जो कुछ हुआ था मेरे साथियों के लिए समझना मुश्किल नहीं रहा होगा, और मैं ये सोचती हुई वहाँ से वापस चल दी कि गुरबचन सिंह ने मेरी गैर मौजूदगी की वजाहत कर दी होगी, और मैं अपने साथियों तक पहुँचने से पहले एक फ़ैसला कर चुकी थी, और फौरी तौर पर मैंने जो कदम उठाया उसका कोई मुतबादल राह मेरे सामने नहीं आई, और पुलिस से फायरिंग के तबादले की सूरत में बिला सबब एमुनेशन ज़ाया होता रहता, और इसका नतीजा क्या निकलता ये एक अलग बात थी। मैं जब वापस पहुंची तो स्पीरो वहील भ्रष्ट होने वाले वहील की जगह लगाया जा रहा था, और आदल उसी में मसरूफ था। सलार अकबर, गुरबचन सिंह और पांचों कमांडो अभी तक मुस्तैद चौकन्ना खड़े थे, और दुश्मनों के बारे में अभी तक उन्हें शायद इल्म नहीं था कि वो कौन थे, यानी हुकूमत की किसी एजेंसी से उनका ताल्लुक था, और गुरबचन सिंह और सलार अकबर फौरन मेरे करीब आ गए थे। आपको अपनी ज़िंदगी इस तरह खतरे में नहीं डालनी चाहिए, गुरबचन सिंह बोला, और हम में से कोई भी ये काम अंजाम दे सकता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी तो मेरी ही तरह खतरे में पड़ गई थी। और मैंने धीमी आवाज़ में कहा, और सभी की ज़िंदगी कीमती होती है। हुक्म किया होता आपने, मैं तो समझ ही नहीं सका था कि आप क्या कदम उठाने वाली हैं। और गुरबचन सिंह बदस्तूर अपनी ही बात कहे गया, और इतनी मोहलत नहीं थी, और मैं बात ख़त्म करने की खातिर बोली, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से अपनी महम पर रवाना होना चाहिए। और गुरबचन सिंह की आवाज़ से फिक्रमंदी का एहसास हो रहा था। बमों के धमाके दूर तक सुने गए होंगे, और कोई खतरा फिर हमारी राह रोक सकता है। उसने ताई तलब नज़रों से सलार अकबर की तरफ देखा, और इस मामले में सलार अकबर के कुछ कहने से पहले ही मैं बोल उठी, अब कोई खतरा पेश नहीं आएगा। और ये आप यकीनी तौर पर किस तरह कह सकती हैं? सलार अकबर पहली मर्तबा बोला। इसलिए कि अब हम अपनी महम पर रवाना नहीं हो रहे, मैंने जवाब दिया, और हम यहीं से वापस चलेंगे। ये क्या कह रही हैं आप? गुरबचन सिंह हैरत का इजहार करने लगा। माफ़ कीजिएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है गुरबचन सिंह जी, किरण जी ठीक कह रही हैं। सलार अकबर ने मेरी तायद की। सिर्फ अजलास की हद तक वो लोग मुझे मेरे असल नाम से मुखातब करते थे, और मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। गुरबचन सिंह ने कहा कि रास्ते में रुकावटें तो होती हैं, मगर हुक्म पर हुक्म। और फिर वह मेरी तरफ देखकर कहने लगा, आपका अगर यही हुक्म है तो इस फैसले की वजह मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं गुरबचन सिंह जी, मगर ये इन बातों का वक्त नहीं, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, और मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। व्हील तब्दील किया जा चुका था, और वापसी में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। दहली की तरफ लौटते हुए हम पहले से ज़्यादा चौकन्ना और मोहतात रहे, और मैं इस मरतबा भी बंद वैन के पिछले हिस्से में बैठी, और गुरबचन सिंह रास्ते भर बेचैनी से पहलू बदलता रहा, और उसने एक बार मुझसे गुफ्तगू करना चाही, मगर मैं टाल गई। जब हम वापस करोल बाग वाली कोठी में पहुंचे तो मैंने अजलास वाले कमरे का रुख किया, और वो लोग मेरे पीछे पीछे थे। वो यकीनन समझ गए थे कि मैं किसी अहम मसले पर फौरी तौर पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हुए मुझे एक ख्याल आया, और मेरे कदम रुक गए। मैं लिबास तब्दील कर आऊँ, मैंने सलार अकबर को मुखातब किया, आप लोग भी फ्रेश हो लें। उस वक़्त 12:30 बज रहे थे, और 1 बजे सब अफराद अजलास वाले कमरे में आ जाएं, और हाँ ये लें। और मैंने पुश से थैला खोलते हुए कहा, ज़ाहिर है कि अब हमें किसी महम पर तो जाना नहीं, असला वगैरह स्टोर भी रखवा दे, क्योंकि अब कल रात मुमकिन है कि हम इस महम पर रवाना हो, और उसका फ़ैसला भी मीटिंग में कर लेंगे। इस दौरान आदल मेरे हाथ से थैला लेकर जा चुका था, और अपनी बात जारी रखते हुए मैं मुस्कुराते हुए मज़ीद बोली, चाय के लिए कहलवा दीजिएगा, मुमकिन है कि बहसो मबासे में देर लग जाए। और फिर मैंने अपनी गन भी शाने से उतार कर आदल ही को थमा दी, और पंडित जी तुम्हें तो जहमत होगी, मगर मेरा जुमला पूरा होने से पहले एक कमांडो बोल उठा, लाइए पंडित जी मुझे दे दें। उसने थैला और गन आदल से ले ली, और फिर मैं ही क्या सभी वापसी के लिए मुड़ गए। सलार अकबर के चेहरे से ज़ाहिर था कि वो किसी गहरी सोच में गुम है, मगर गुरबचन सिंह का चेहरा बुझा बुझा सा था, और उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया था। खुश मजाजी भी जैसे रुखसत हो गई, और मैं बहरहाल तेज कदमी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तवक्का के मुताबिक कविता मुझे सोती हुई मिली, और कमरे में दाखिल होकर मैंने एहतियात से काम लिया कि कहीं उसकी आंख न खुल जाए। कपड़े तब्दील करके मैं मुकर्रर वक़्त पर अजलास वाले कमरे में पहुंच गई, और मेरे साथ इस महम पर जितने भी अफराद रवाना हुए थे वहां सभी मौजूद थे, और मेरी कुर्सी खाली थी, और मैं उस पर जाकर बैठ गई।
मेरी दाएं जन्म सलार अकबर और बाएं जन्म गुरबचन सिंह और बकिया लोग फिर बैठे थे, और मैंने दाएं बाएं सबके चेहरों का जायजा लिया जिनसे मुख्तलिफ तासरात का इजहार हो रहा था, और उन्हीं में आदल भी शामिल था। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी राह खोटी करने वाले पुलिस वाले थे, और उससे कई बातें सामने आती हैं। मैंने बोलना शुरू किया। पहली बात तो ये कि हमारे खिलाफ उठाया जाने वाला ये कदम किसी गैर मामूली अहमियत का हामिल नहीं। मतलब ये है हुकूमत को हमारे असल अज़ाइम का इल्म नहीं था। अगर हुकूमत को ये खबर होती कि हम दिल्ली और गाज़ियाबाद के दरमियान कायम एमुनेशन डिपो को उड़ाने जा रहे हैं, तो वो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करती और फिर किसी भी सूरत में हमें निकलने का मौका ना मिलता। हुकूमत बहर सूरत हमें पकड़ने की कोशिश करती या हमें ख़त्म करने के लिए अपने तमाम वसाइल बरोए कार लाती, और चंद पुलिस वाले हमारी राह में मज़ाहम ना होते। और मैंने सवाली अंदाज में नज़रें उठाई। मेरे खामोश होते ही गुरबचन सिंह ने कहा, यह महज एक इत्तफाक भी हो सकता है कि पुलिस हमारे पीछे लग गई और हमारी वैन को मुश्तबा समझकर उन्होंने हमारा ताक़ब शुरू कर दिया। पिंडर जी, मैंने आदल को उसके फर्दी नाम से मुखातब किया, क्या तुम इतने बेखबर होकर ड्राइविंग कर रहे थे कि तुम्हें ताक़ब का इल्म ना हो सका? शहर की हदूद तक मैं यकीनन बहुत मोहतात और चौकन्ना रहा था। आदल ने साफ गोई से जवाब दिया। जब हमारी वैन आबादी के दूर से निकल आई और नवाज शहर में पहुंची तो मैं मुतमईन हो गया कि हमारा ताक़ब नहीं किया जा रहा। खुद सलार अकबर भी मेरे साथ आगे बैठे थे और वे मेरे बयान की तस्दीक कर सकते हैं। सलार अकबर ने पहलू बदला और बोला, पिंडर जी ठीक कहते हैं, खुद मैं भी होशियार था और हमारी वैन का ताक़ब नहीं किया गया। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि शहर में गश्त पर मौजूद पुलिस अपने साथ इतनी नफरी लेकर नहीं चलती। इससे ये नतीजा निकलता है कि पुलिस पहले ही से नवाज शहर में हमारी आमद की मुंतज़िर थी, है ना? मैं सलार अकबर ही से मुखातब थी। जी। सलार अकबर ने तवील सांस लिया। और यह भी पता चलता है कि पुलिस के पास हमारी नकलो हरकत के मतलब कोई न कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, लेकिन शहर से निकलने का वाहद वही रास्ता तो नहीं जिस पर हम आगे बढ़ रहे थे। गुरबचन सिंह बोला, अगर पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन थी भी तो एक ही सूरत मुमकिन है कि उसे यकीन हो कि हम किधर जाएंगे। और किरण जी खुद ये कह चुकी हैं कि ऐसी सूरत में हुकूमत कोई बड़ा कदम उठाती। और ये भी तो मुमकिन है गुरबचन सिंह जी के पुलिस ने इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद शहर की नाकाबंदी कर दी हो। सलार अकबर ने अजहारे ख्याल किया। मगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कैसे? गुरबचन सिंह यह कहकर गालबन सोचने लगा। असल मसला यही है। और मैंने संजीदगी से कहा, और हम इसी पर गौर करने जमा हुए हैं। हमें पहले ये तर्जिया करना पड़ेगा कि हमारी इस मुहिम के बारे में कितने लोगों को इल्म था। गुज़श्ता रात के अजलास में इस तजवीज़ पर अमल दरामद का फैसला किया गया, और जिसमें मुझ समेत मकामी तंजीम के तमाम ही अहम अरकान मौजूद थे। इस अजलास में तैयारी के लिए सिर्फ एक दिन की मोहलत दी गई और बकिया मामलात मुझ पर छोड़ दिए गए। और ये कहकर मैं खामोश हो गई। इजलास में रवानगी के वक़्त वगैरह से मुतल्लक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सलार अकबर ने वजाहत की, और ये सब कुछ हमने अजलास के बाद तय किया। उस गैर रस्मी मीटिंग में जो अफराद शरीक हुए उनमें से सिर्फ एक फ़र्द यानी नायब सलार आला जैक्सन यहाँ मौजूद नहीं, और बकिया 4 अफराद में से एक मैं भी थी, और मेरे अलावा सलार अकबर, पिंडर बाल मकंद और गुरबचन सिंह जी थे। और यहाँ इस वक्त जो 5 कमांडो मौजूद हैं। अगले रोज़ शाम को सिर्फ ये इतला दी गई कि उन्हें किसी खास मुहिम पर दिल्ली से बाहर जाना है, और वो तमाम तर तैयारियों के साथ रात को 9 बजे तक रोल बाग वाली कोठी यानी यहाँ पहुँच जाएं। और इस वक्त तक 5 कमांडोज को ये मालूम नहीं था कि असल मुहिम क्या है और उन्हें हमारे साथ कहाँ चलना है। और मैंने ये कहकर तस्दीक की खातर यक्के बाद देगरे कमांडोज की तरफ देखा। आपको सिर्फ ये खबर थी कि सफ़र एक वैन में होगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं किरण जी। आदल के करीब बैठे हुए कमांडो ने फ़ौरन मेरी तायीद की, और हमें तो कुछ भी मालूम नहीं था, और यहीं आकर मुहिम के मतलब इल्म हुआ। बकिया कमांडोज भी अपनी राय का इजहार में बोले और अपने साथी से इत्तफाक किया, और ये भी कि यहाँ आने के बाद आप में से कोई बाहर नहीं गया। मैंने मजीद कहा, जी हाँ, और वह बीक आवाज़ बोले, अब मैं आप लोगों से चंद सवालात और करना चाहती हूँ। और मेरी इल्म इतला के मुताबिक आप में से 3 का क़याम गुरबचन सिंह जी वाली कोठी में है, और बकिया 2 एक और ठिकाने पर थे, और दोनों ठिकानों पर तकरीबन शाम को 5 बजे वो इतला पहुंचाई गई जिसका अभी जिक्र हुआ। और कमांडोज ने मेरी इस बात की भी तायीद कर दी और बोले,
5 बजे के बाद यहाँ पहुँचने तक आप सब अपने अपने ठिकानों पर ही रहे या कहीं आए गए। उससे आपका क्या मतलब है किरण जी? आदिल के करीब बैठा हुआ कमांडो बोल उठा। और क्या आप हमारी वफादारी पर शक कर रही हैं? यानी ये कि हम में से कोई पुलिस का मखबर है? और उसके लहजे में हल्का सा एहतजाज था और चेहरे पर भी तनाव सा नजर आने लगा। राजेंद्र, गुरबचन सिंह की सख्त आवाज उभरी, मत बोलो कि इस वक्त तुम किससे मुखातब हो और तुमसे जो कुछ पूछा जा रहा है सिर्फ उसका जवाब दो। धीरज गुरबचन सिंह जी, राजेंद्र को जो कुछ कहना था कहने दें, मैं नरमी से बोली और फिर राजेंद्र से मुखातब हुई। तुम शायद ये भूल गए कि इससे पहले मैंने तंजीम के इस अजलास का भी जिक्र किया था जिसमें सलार आला के अलावा तमाम अहम अरकान ने शिरकत की थी। फिर इस गैर रस्मी मीटिंग का भी तज़किरा आया था और जो सलार अकबर के कमरे में हुई। और बात सिर्फ इतनी है कि हम सब ने मिलकर किसी नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। और जब किसी मामले का तर्जिया किया जाता है तो उसके हर पहलू को देखा जाता है और उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, और ना इसका मकसद किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाना होता है। तुम इतनी जल्दी इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि मैं तुम्हारे ऊपर शक कर रही हूं या तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पुलिस का इन्फॉर्मर कहना चाहती हूं? ये बताओ। और पुलिस को किसी न किसी जरिए से तो खबर मिली होगी ना? और मेरी नज़रें उसके चेहरे पर जम गईं। जी, इस मर्तबा राजेंद्र की आवाज़ बुलंद नहीं थी और उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। तो फिर सबसे पहले तुम ही जवाब दो कि तुम 5 बजे के बाद से यहाँ आने तक कहाँ रहे? और मैं कोठी में ही था, राजेंद्र ने जवाब दिया। और मेरे दोनों साथी भी मेरे इस बयान की तस्दीक कर सकते हैं जो यहाँ मौजूद हैं। यानी तुम गुरबचन सिंह वाली कोठी में थे? जी हाँ किरण जी। बकिया दोनों कमांडोज ने भी अपने राजेंद्र के बयान की तायीद कर दी। अब सिर्फ बकिया 2 कमांडो रह गए और जो एक दूसरे के ठिकाने से करोल बाग पहुंचे थे। जो 3 कमांडोज बाएं जन्म गुरबचन सिंह के बाद बैठे थे, उन्हीं में से वह 2 कमांडो थे जिनसे अब तक पूछ-गुछ नहीं की गई और मैंने उन दोनों की तरफ सवालिया नजरें उठाईं। ये विजय इतला मिलने के बाद सलार वहीदुद्दीन से इजाज़त लेकर गया था और एक कमांडो ने गुरबचन सिंह के बराबर बैठे हुए अपने साथी की तरफ इशारा किया। सलार ने जल्द लौट आने की ताकीद की और विजय की मां इन दिनों बीमार है और जिस कमांडो ने यह बात बताई उसका नाम तफैल था। इस वक्त शायद 6:30 बज रहे थे। मैंने बराह रास्त विजय से कोई सवाल नहीं किया और उसके चेहरे पर सिर्फ एक नज़र डालकर तफैल से पूछा, तुम्हें विजय की मां के अलील होने का इल्म किस तरह हुआ? खुद विजय ने मुझे बताया था। कब? मैंने दरियाफ्त किया। उस वक्त जब सलार वहीदुद्दीन से विजय ने अपने घर जाने की इजाज़त मांगी तो मैं भी मौजूद था और मुझे तभी यह बात मालूम हुई। तफैल ने बताया। तुम्हें अपनी माँ की बीमारी का पता कैसे चला? और मैंने विजय से पहला सवाल किया। मैं अपने घर आता जाता रहता हूँ। और विजय कुछ घबराया हुआ सा दिखाई दिया। और माँ जी बहुत दिन से बीमार हैं। और क्या बीमारी है उन्हें मैंने मालूम किया। उन्हें टीबी है और उनको जी हाँ टीबी। और आज से पहली आखिरी बार तुम उनसे कब मिले थे? मैं सवाल पर सवाल किए जा रही थी। 4 दिन पहले मिलने गया था और उस वक्त उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और विजय अब रवानी से बोलने लगा था। शायद उसने अपने मुंतशिर हवास पर काबू पा लिया। और माँ जी ने मुझसे कहा था कि मैं उनसे मिलने आता रहूं। इस बात का जिक्र तुमने तफैल या अपने दूसरे साथियों से पहले कभी क्यों नहीं किया? और मैंने दरियाफ्त किया। तफैल कुछ कहने वाला था कि मैंने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। विजय बोला, और मैं अपने साथियों को ये बताकर परेशान करना नहीं चाहता था। तो तुम कुछ कहना चाहते हो तफैल? मैं पुरसकून आवाज़ में बोली। जी, तफैल ने कहा कि फराश खाने वाली हवेली में जो नए अरकान की तरबियत गाह भी है और वहाँ मुझसे समेत 6 कमांडोज का क्याम है। और गुज़श्ता 1 हफ्ते से सलार वहीदुद्दीन ने किसी भी कमांडो को हवेली से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। उसकी वजह, और ये सवाल मैंने तफैल ही से किया था। मगर विजय बेचैनी से पहलू बदलने लगा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। और मैंने उससे कहा, जिस तरह मैंने तफैल को तुम्हारी बात मुकम्मल होने से पहले नहीं बोलने दिया, उसी तरह तुम भी खामोश रहो और जब तुमसे कुछ पूछा जाए तो बोलना। हाँ तफैल, सलार वहीदुद्दीन ने तुम लोगों को हवेली ही तक क्यों महदूद कर दिया था? सलार का कहना था कि हुकूमत शायद हमारी तंजीम के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाली है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। तफैल ने वजाहत की। और विजय, तुम्हें भी इसका इल्म होगा? जी हाँ, दरअसल माँ जी। और विजय की पेशानी पर पसीना नजर आने लगा। मैं शायद 1 हफ्ते से पहले अपने घर गया था
और फिर जब एक खास मुहिम दरपेश थी तो तुम्हें ख्याल आया कि कहीं तुम उसमें मारे ना जाओ, तो सोचा कि अपनी बीमार माँ को एक नज़र देख आऊं। यही बात थी ना? जी जी हाँ मैं। और बकवास करते हो तुम। मैं एकदम चीख उठी। क्या तुम समझते हो कि यहाँ बैठे हुए सब लोग बेवकूफ़ हैं और मैं अहमक थी जो एक अहम मुहिम को तर्क करके रास्ते से लौट आई? और मैंने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया था कि हमारे दरमियान कोई काली भेड़ मौजूद है जो आइंदा भी हमारे लिए खतरा बन सकती है। उस मुहिम से ज़्यादा ज़रूरी था कि पहले इस चेहरे को बेनकाब कर दिया जाए और मेरा जुमला अधूरा ही रह गया क्योंकि विजय एकदम उठ खड़ा हुआ और फिर उससे पहले कि वह मेज़ उलटने में कामयाब हो जाता, गुरबचन सिंह ने उसे दबोच लिया। वक्ती तौर पर थोड़ी सी अफरा तफरी ज़रूर मची, लेकिन जल्द ही उस पर काबू पा लिया गया और विजय को उसके साथी कमांडो ने संभाल लिया और अब वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। ऐसी किसी ज़ैर ज़मीन तंजीम में जब कोई गद्दार बेनकाब हो जाए तो दूसरे उसके खून के प्यासे हो जाते हैं और किसी मकसद के हसूल की खातिर अपना सर हथेलियों पर रख कर जद्दोजहद करने वाले किसी काली भेड़ को अपने दरमियान बर्दाश्त नहीं करते। और यही वजह थी कि सब उस वक्त जज्बाती हो गए और गुरबचन सिंह तो उसे फौरन गोली मार देने के हक में था, मगर मैंने जल्दी ही सूरत हाल को बिगड़ने से बचा लिया। दुश्मन के किसी मुखबर से बहुत कुछ मालूम हो सकता था और इसके अलावा भी बहुत से सवालात मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहे थे। वहाँ मौजूद अफराद का वक्ती जोश जब कुछ दब गया तो मैंने विजय को मुखातब किया। विजय के मैनी है फतेह, और कितना अच्छा और मुबारक नाम है तुम्हारा। और मेरे लहजे में नरमी थी, मगर अफसोस कि तुम इस वक्त अपने नाम की निस्बत के बरअक्स फतेह की बजाय शिकस्त से दो चार हो। और मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। सुनो विजय, तुम्हें शायद अंदाजा हो चुका है कि तुम्हारे साथी किसी कीमत पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं तुमसे वादा तो नहीं करती कि तुम्हारी जिंदगी बचा लूंगी। हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरी सिफारिश पर तुम्हारे साथ नरमी बरती जाए, ऐसी नरमी जो कम अज़ कम सजाए मौत ना हो। और मेरा ज़हन तेजी से काम कर रहा था। तुम्हारा जुर्म यकीनन काबिल मुआफ़ी है और उसी के साथ मुझे ये भी यकीन है कि तुमने दुश्मन का आलाकार बनना बेखुशी कबूल नहीं किया होगा। विजय ने पहली बार झुकी हुई गर्दन ऊपर उठाई और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। किरण जी, ये कुत्ते का बच्चा ढोंग रचा रहा है। उस हरामजादे ने हमारे कमांडो की वफादारी को शुबे में डाल दिया है और उसके साथ अब कोई रियायत ना करें। तुम खामोश बैठो राजेंद्र। और मेरी आवाज़ में सख्ती आ गई। अपने जज्बात पर काबू रखो और मेरे और विजय के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में कोई मदाखलत नहीं करेगा। सलार अकबर ने मेरी ताईद में चंद अल्फाज अदा किए और फिर कुछ देर को कमरे में सन्नाटा छा गया। बोलो विजय। और मैंने ज़रा देर बाद फिर विजय को मुखातब किया। खामोशी तुम्हारे जुर्म की नोयत में इजाफा कर सकती है, कमी नहीं। मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहती हूँ कि मुझे कुछ खसूसी इख्तियारात भी हासिल हैं। तुम्हारे सलार आला कदीर बेग भी मेरी सिफारिश को रद्द नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें तंजीम के निगरानी आला से इजाज़त लेना पड़ेगी। और तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो यहाँ मौजूद दोनों सलार मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं। तुमने गालबन खुद भी मेरी हैसियत और मर्तबे का अंदाज़ा कर लिया होगा, और अगर ऐसा ना होता तो सलार अकबर और गुरबचन सिंह की मौजूदगी के बावजूद मैं इस मुहिम की सरबराह ना होती जो अधूरी रह गई। और ये सब कुछ तुम्हें बताने का मकसद अपनी अहमियत और बड़ाई जताना हरगिज़ नहीं, बल्कि इससे तुम्हारी अजहार हकीकत समझ सकते हो। और मैं तुमसे ये कह रही थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम्हें कोई ऐसी मजबूरी लाहक थी जिसका इल्म शायद तुम ही को हो, और मेरी बात का सबूत तुम्हारी आंखों में तैरते हुए आंसू हैं। और राजेंद्र की तरह मैं उन्हें ढोंग नहीं समझती। सुनो विजय, कोई भी आदमी ना तो मुकम्मल तौर पर फरिश्ता होता है और ना शैतान आदमी खैर व शर का मजमूआ, और उस पर खैर भी गालिब आ सकता है और शर भी। उसके अलावा बाद हालात में किसी मजबूरी के तहत भी आदमी के खैर पर उसका शर गालिब आ जाता है। इस बात को दूसरे अल्फाज में यूं भी कहा भी जा सकता है कि नागुज़ीर हालात व वाक़यात उसे गलत राह पर डाल देते हैं, और सो हालात के जबर का शिकार कोई ऐसा शख्स मेरी नज़र में किसी सज़ा का मुस्तहिक नहीं। और तुम्हारा मामला भी मुझे कुछ ऐसा ही मालूम होता है। बोलो, क्या मेरा क़यास दुरुस्त है? मुझे मर जाने दे किरण जी। विजय अचानक बोल उठा। और मुझ जैसे गद्दार के लिए मौत की सज़ा भी कम है। उसके अल्फाज मेरे लिए गैर मुतवक्का थे और मैं समझ रही थी कि मेरे अल्फाज सुनकर वह रहम की भीख मांगने लगेगा, और मैंने इसीलिए उसकी तरफ हैरत से देखा कि कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रहा। अमूमन मौत को सामने देखकर आदमी उससे हर मुमकिन बचने की कोशिश करता है, और मैंने यही हरबा आजमाया था कि वह ज़ुबान खोल दे। इसका मतलब यह है विजय कि तुम्हें शायद कुछ बताना नहीं चाहते।
किरण जी, अब कुछ बताने या ना बताने से क्या हासिल। उसकी आवाज़ भर्रा सी गई। जो होना है वो तो होगा और उसे कौन टाल सकता है। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया कि सदाए मौत से बच सकते हो? ये बात नहीं, मुझे अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार होता तो इस तंजीम में ही क्यों आता। और उसने बड़ी अजीब सी बात की और फिर खुद ही अपनी बात की वजाहत में बोला, मैं तो उसी दिन खुद को मुर्दा समझ चुका था जब अपनी अपनी कनों की इज्जत व आबरू बचाने की खातर तंजीम से गद्दारी करने पर आमादा हो गया था। और विजय की आंखों से आंसू बहने लगे। एक मुर्दा शख्स के जिस्म में गोली उतार दी जाए या उसे टुकड़ों में टुकड़े कर दिया जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक चलती फिरती लाश था। कमल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने नरमी से पूछा। वो मेरी छोटी बहन है शायद, और शायद मेरी ही तरह और भी ऐसे हों, ऐसे कमज़ोर लोग जो अपनी बहन के तार तार लिबास को देखकर खुद गर्द बन जाएं और अपने ज़मीर को मौत की नींद सुला दें। और विजय की आवाज़ जैसे कहीं बहुत दूर से सुनाई दे रही थी। और अभी उसकी उम्र ही क्या है, बच्ची है, 14 साल की एक बच्ची। तुम्हारी बहन के साथ ये वैश्याना सलूक करने वाले क्या पुलिस वाले थे? नहीं, CID वाले। और उसने जवाब दिया। और ये कब का वाक़या है? ज़्यादा दिन नहीं हुए जब रघुवीर और समीउल्लाह को CID वालों ने गिरफ्तार किया, और उससे एक हफ्ता पहले की बात है। तो क्या रघुवीर और समीउल्लाह की निशानदही तुमने की थी? उसने इकरार में सर हिला दिया। सिर्फ वही दोनों क्यों, और दूसरों के साथ तुमने क्यों रायत की? और तुम भीख वक़्त तंजीम के बहुत से अरकान को पकड़वा सकते थे, और उसके लिए तंजीम के किसी भी ठिकाने की निशानदही मुमकिन थी। फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? और मैंने एक अहम सवाल किया, और उसी के साथ मुझे पहाड़गंज वाली कोठी पर छापे का ख्याल आ गया था। रघुवीर उसी छापे के दौरान मारा गया, मगर यह मामला ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का था, और उसमें विलियम राइट भी मुलव्वस था, और विलियम के अगवा का इल्म सिर्फ चंद अफराद को था। मेरे सवाल के जवाब में विजय ने तवील सांस लिया और फिर कहने लगा, आदमी के ज़मीर को मुर्दा होने में भी तो कुछ देर लगती है। इसका क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने वजाहत चाही। अपनी बहन की ज़िंदगी और आबरू खतरे में होने के बावजूद मैंने चंद शराइत पर उन दरिंदों की बात मानी, और वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था, और जवाबन मुझे भी उनकी एक शर्त मानना पड़ी। कुछ देर में उसके बोलने की मुंतज़िर रही, और वह कहीं खो सा गया, और फिर मैंने उसे टोक ही दिया। और मैंने उनकी जो शर्त मान ली उसे भी शर्मनाक कहा जा सकता है। उन्होंने कमल को यर्ग मनाल बना लिया था, और मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुझसे जो वादा किया था उस पर कायम रहे या नहीं। उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि मेरी बहन की इज्जत व आबरू महफूज रहेगी। और तुम्हारी शराइत क्या थी? पहली शर्त यह कि मैं तंजीम के किसी ठिकाने की निशानदही नहीं करूँगा, और दूसरी शर्त ये कि तंजीम के मतलब कुछ नहीं बताऊँगा, और उसका तरीक़ेकार क्या है या दहली में उसके कितने अरकान हैं। तीसरी शर्त ये कि उसी सूरत में तंजीम के किसी रुकन या अरकान की निशानदही करूँगा जब वो तंजीम के किसी भी ठिकाने से बाहर हों। और चौथी शर्त ये कि एक मरतबा किसी की निशानदही के बाद जल्द ही किसी दूसरे फ़र्द या अफराद की निशानदही नहीं करूँगा, और इस सिलसिले में मुझ पर दबाव नहीं डाला जाएगा। और आखिरी शर्त यह थी कि मेरी बहन की ज़िंदगी महफूज रहेगी, और जब चाहूँ उसे ज़िंदा सलामत देख सकूँगा। और विजय अब किसी झिझक के बगैर वाणी से बोल रहा था। और तुम उसके बाद अपनी बहन से मिले? हाँ, सिर्फ एक बार, और यही मुलाकात मुझे बहुत महंगी पड़ी। उन्होंने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं रघुवीर और समीउल्लाह के बाद किसी और रुकन या बहुत से अरकान की निशानदही करूं। उनका कहना यह था कि मैं दोहरा खेल खेल रहा हूं। सबूत के तौर पर उन्होंने रघुवीर और समीउल्लाह के बचा लिए जाने का जिक्र किया, और रफ्ता रफ्ता उनका दबाव बढ़ता गया। उन्होंने मुझे आखिरी मरतबा धमकी दी कि अगर मैंने मज़ीद चंद रोज़ कोई इतला फराहम नहीं की तो मेरे बाप को भी उठवा लेंगे, और उसी के साथ मेरी बहन को बेआबरू करके मार डाला जाएगा। और मैंने उनसे बमुश्किल 2 हफ्ते की मोहलत ली। उस मोहलत को ख़त्म होने में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। और फिर वो खामोश हो गया। विजय, तुमसे ये सौदेबाजी किसने की? एक अंग्रेज CID अफसर हार्डी और उसके एक हिंदुस्तानी मतहत विक्रम ने। और तुम उनके हथे कैसे चढ़ गए? मुझे नहीं मालूम कि उन्हें मुझ पर कैसे शुबा हुआ। और जब मैं एक मरतबा अपने घर वालों से मिलने गया तो मालूम हुआ कि मेरी कमल को 2 रोज़ पहले अगवा किया जा चुका है, और उसी रोज़ कोई अनजान शख्स घर में एक लिफाफा बंद लिफाफा डालकर चला गया, और लिफाफे पर अशद ज़रूरी और सिर्फ विजय के लिए लिखा हुआ था। मैंने वो लिफाफा खोल कर पढ़ा तो लिखा था, तुम अगर अपनी बहन की ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो मुकर्रर वक़्त और मकाम पर पहुंच जाओ, और तुमने अगर पुलिस वगैरह को मतला किया तो तुम्हारी बहन की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और मेरी बहन को एक सुबह
मंदिर से पूजा करके लौटते हुए अगवा किया गया और ख़त पढ़कर मैं उस गलतफहमी में मुब्तला हो गया कि यह बदमाशों का कोई गिरोह है और मुझे खुद पर एतमाद था कि मैं उन बदमाशों से निपट लूँगा। किसी को कुछ बताए बगैर मैं उसी रात को मैं कुतुब मीनार के करीबी तारीखी खंडरात में उस जगह पहुँच गया जिसकी निशानदही खत में की गई, और वहाँ मुझे खिलाफ़े तवक्का चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया और फिर एक बंद गाड़ी में CID हेड ऑफिस पहुँचा दिया गया और विजय ने सब कुछ तफसील से बयान कर दिया। इतला फराहम करने के लिए उन्होंने तुम्हें ख़ास मकाम, वक़्त या जगह बताई थी? मैंने सवाल किया। और मैं किसी भी करीबी थाने में ड्यूटी पर मौजूद किसी जिम्मेदार पुलिस वाले को इतला फराहम कर सकता था और कम अज़ कम उसका हेड कांस्टेबल होना ज़रूरी था। उसके लिए हार्डी ने मुझे एक कोड वर्ड भी बताया था, कलायो, और विजय ने बताया और मैं छुपता छुपाता करीबी थाने पहुंचा और अपना कोड बताकर एक SI को एक इत्तला फराहम कर दी कि चंद हुकूमत दुश्मन अफराद आज रात 9 बजे के बाद दिल्ली से कहीं बाहर जाने वाले हैं और वो लोग एक वैन में सफ़र करेंगे और इससे ज़्यादा मुझे कुछ और मालूम नहीं। सारा मामला हल हो चुका था और तमाम कड़ियाँ आसानी मिलाई जा सकती थीं। तमाम थानों को मतला कर दिया गया कि मज़कूरा कोड बताने वाले शख्स के बयान को मुसद्दका समझकर फौरी कार्रवाई की जाए। रघुवीर और समीउल्लाह के बारे में भी विजय ने एक थाने को इत्तला फराहम की थी और उस रोज़ भी वो उन दोनों के साथ था और बज़ाहिर फरार हो गया। पुलिस ने खुद उसे फरार होने का मौका दिया और जिस सब इंस्पेक्टर को विजय ने इत्तला दी थी खुद वो भी रघुवीर और समीउल्लाह को गिरफ्तार करने वालों में शामिल था। उसने विजय को पहचान लिया और मैं क्योंकि उन दोनों तंजीम से बराह रास्त मुतल्लक नहीं थी इसलिए मुझे ये मालूम नहीं हो सका था कि गिरफ्तारी के वक़्त तंजीम का कोई रुकन पुलिस के हथे चढ़ने से बच गया था और इस वक्त यूं भी असल मसला रघुवीर और समीउल्लाह को रिहा कराने का था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अहकाम के मुताबिक उन दोनों को CID वालों के हवाले कर दिया होगा और विजय से तमाम मालूमात हासिल करने के बाद मैंने सलार अकबर को मुखातब किया। आपके ज़हन में कोई बात हो तो पूछ लें, मुमकिन है मैं कोई ज़रूरी सवाल नज़रअंदाज कर गई हूँ। मेरे ख्याल में हर बात वाज़ेह हो चुकी है, आपने कोई भी पहलू तशन्ना नहीं छोड़ा। सलार अकबर ने तस्दीक तलब अंदाज में गुरबचन सिंह की तरफ देखा। आप मुझसे बेहतर ये मामला समझ सकते हैं क्योंकि ये शोबा मेरा नहीं। और गुरबचन सिंह संजीदगी से बोला, फिर भी गुरबचन सिंह जी आप अपनी राय का इजहार तो कर ही सकते हैं। मैं बोली, और मेरी तो सिर्फ एक ही राय है कि जो मैं पहले ही ज़ाहिर कर चुका हूँ। गुरबचन सिंह के नथने फूलने लगे। इस गद्दार ने सिर्फ अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए उन बहनों का ख्याल नहीं किया जिनके कड़ियल जवान भाई मारे गए और उन माओं का उसे ख्याल नहीं आया जिनके बेटे इन्हीं के सामने खाको खून में नहला दिए गए। गुरबचन सिंह की आवाज़ बुलंद होती गई और उस मीर जाफर ने यह नहीं सोचा कि लाल किले की दीवारें अब तक मुग़ल ताजदारों का लोहा पड़ती हैं और हिंदुस्तान का सुहाग लूट गया और ये सिर्फ अपना घर बचाने के लिए जालिमों से सौदेबाजी पर तैयार हो गया। हर मुजरम के पास अपने जुर्म का कोई ना कोई जवाब होता है, तो क्या किसी भी मुजरम को सज़ा ना दी जाए? मुमकिन है ये गद्दार मुल्को कौम आपकी नज़र में किसी रायत का मुस्तहिक हो और आप इस सिलसिले में अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की भी मजाद हैं, लेकिन मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ कि मेरी राय कुछ और है और जुल्म का साथ देने वाला भी जालिम है और उसके पास दूसरा रास्ता भी था। ये तंजीम को हक़ाइक़ से आगाह कर सकता था कि क्या तंजीम उसका साथ ना देती, इसे और उसके घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करती, और अगर ऐसा तंजीम ऐसा ना भी करती तो क्या कुर्बानी देना उसके बस में नहीं था? क्या इसी को अपनी बहन से मोहब्बत है और किसी और को नहीं? और क्या इसके सिवा किसी और को अपने माँ बाप से प्यार नहीं? और अगर इसमें इतना हौसला नहीं था तो फिर हमारे साथ ही क्यों आया? और ये तो सरफरोशों का काफ़िला है, इसमें सुरंगों हो जाने वालों की कोई गुंजाइश नहीं। गुरबचन सिंह के पुरजोश अल्फाज की गूंज कमरे में सुनाई देती रही और फिर एकदम खामोशी छा गई। इस दौरान मुझे एक ख्याल और आया और मैं विजय से मुखातब हुई। तुमसे एक आखिरी सवाल और करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे किसी मज़ीद सवाल का जवाब दे सकते हो? विजय ने अपना झुका हुआ सर उठाया और गुरबचन सिंह की जिल्लत अमीज़ बातें सुनकर उसका सर एक बार फिर शर्मिंदगी से झुक गया था। उसने कहा कि मैं अपनी गद्दारी का इतराफ़ कर चुका हूँ और सलार गुरबचन सिंह ने जो कुछ फरमाया उससे पूरी तरह मुतफिक हूँ। मुझे अपनी पस्ती का एहसास हो चुका है, तो आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। इस अरसे में क्या तुम्हें यह भी मालूम हुआ कि तुम्हारी ही तरह तंजीम का कोई और रुकन भी पुलिस
CID यह हुकूमत की किसी एजेंसी के लिए मुखबरी कर रहा है? जी नहीं। हाँ, एक बात और पूछना रह गई कि तुम अपनी बहन से कहाँ मिले थे? CID हेड ऑफिस में, विजय ने जवाब देने में देर नहीं की। विजय, तुम खुद कह चुके हो कि अपनी मौत को गले लगाने पर बखुशी तैयार हो, और उसी के साथ तुम्हें गालबन यह भी मालूम होगा कि तंजीम के फैसले अमूमन कसरत राय की बुनियाद पर होते हैं। तुमने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, और खसूसी इख्तियारात हासिल होने के बावजूद, और तुमसे हमदर्दी के साथ साथ मुझे इस बात पर दुख है कि तुम्हारा जुर्म यहाँ मौजूद अफराद की नज़र में काबिल मुआफ़ी नहीं। तुम ही बताओ, क्या मैं अक्सरियत की राय को रद्द कर दूं और मैं अपनी तरफ से तुम्हें फैसले का अख्तियार देती हूं? इंसाफ का तकादा यही है कि मैं खुद अपने खिलाफ फैसला दूं, और विजय के लहजे में एतमाद था, और मैं अपने लिए सजाए मौत की दरख्वास्त करता हूं। गुरबचन सिंह जी, आपने विजय का फैसला सुन लिया, और मैं आपसे और इस मीटिंग में मौजूद दूसरे अफराद से सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि सजाए मौत देते हुए तरीक़ेकार में कोई नरमी की जा सकती है। नरमी से आपकी क्या मुराद है? सलार अकबर ने पूछा। फौरी मौत, मैंने वजाहत कर दी, और मेरा इशारा साइलेंट डेथ की तरफ था। सलार अकबर मेरा इशारा समझ कर बोला। गुरबचन सिंह जी भी खामोश मौत के बारे में पूछ लेते हैं। फिर गुरबचन सिंह और दीगर अफराद ने उस रियायत पर या नरमी पर कोई एतराज़ नहीं किया, और मैं किसी ऐसे ही मौका के लिए अपने साथ साइलेंट डेथ लेकर आई थी, और मैंने उसे अपने सामने मेज़ पर रख दिया, और विजय ने अपना सर झुका लिया और अपनी आंखें भी बंद कर लीं। विजय, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी बहन को तुम्हारे वालिदैन तक पहुँचा दूंगी, और वो बहरहाल बेगुनाह है, और तुमने यकीनन दुश्मन का आलाकार बनने से पहले सरफरोश तंजीम के लिए कुछ खिदमात भी अंजाम दी होंगी, और तुम उसे इन खिदमात का सिला भी समझ सकते हो। और मेरी बात सुनकर विजय ने इस मरतबा ना सर उठाया ना आंखें खोली, और मैंने भी उसे कुछ बोलने पर मजबूर नहीं किया। गुरबचन सिंह जी, और मैंने उसे अपनी तरफ मतवज्जा करके साइलेंट डेथ की तरफ इशारा किया। गुरबचन सिंह ने इशारा पाते ही साइलेंट डेथ उठाने में देर नहीं की। दूसरे ही लम्हे विजय का जीता जागता जिस्म मौत की सर्द बाहों में सो चुका था, और उसके जिस्म में साइलेंट डेथ की नाड़ से निकलने वाली जहरीली फौलादी सुई पिसत हो गई। वो एक गद्दार का अंजाम था, और उसके बावजूद ज़रा देर को कमरे में सोगवार सी फिजा छा गई। सलार अकबर के हुक्म पर कमांडो ने विजय के मुर्दा जिस्म को कुर्सी से खोलकर वहीं ज़मीन पर डाल दिया। इस मौका पर गुरबचन सिंह बोला, इसकी लाश सुबह होने से पहले उसी थाने के हाथे में फेंकवा देना चाहिए जहां उसने हमारे बारे में इतला दी थी, और ये महज एक जज्बाती मामला था, या ज़्यादा से ज़्यादा बेगैरत हुकूमत के लिए एक इंतबा, और मैं उसी सबब खामोश रही और बकिया कार्रवाई के दरमियान कुछ न बोली। मेरे ख्याल में से कोई फ़र्क ना पड़ता कि विजय तंजीम का गद्दार था या जो कुछ भी था, बहरहाल एक हिंदुस्तानी था, और उसकी ज़िंदगी या मौत से हुकूमत को क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मैं तो उस वक़्त चौंकी जब विजय की लाश के साथ छोटी सी एक स्लिप पिन की गई, और उस कागज़ पर अंग्रेज़ी में चंद अल्फाज टाइप किए गए, गासिब व अय्यार हुकूमत के कुत्ते हार्डी के लिए तोहफ़ा। और मुझे वो बेगुनाह लड़की याद आ गई जिनकी जान बचाने का वादा मैंने उसके भाई से किया था, और वो भाई जिसने बहन की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी की परवाह भी नहीं की। सुबह होने में भी 2-2.5 घंटे बाकी थे, और इस दौरान में बहुत कुछ हो सकता था, और विजय की लाश के साथ जो पर्चा पिन किया गया उसके रद्द अमल से मैं वाकिफ थी। उसका रद्द अमल कमर की लाश था, और एक ऐसी लड़की की लाश जिसे बेहुरमत करने के बाद कत्ल किया गया हो। विजय की लाश 2 कमांडो कमरे से उठाकर ले गए, और मैंने गुरबचन सिंह की तरफ दैनिक खेल नज़रों से देखा, और मैंने उससे कहा कि आज की रात यूं ही खाली चली जाएगी। और गुरबचन सिंह ने मेरी तरफ हैरत से देखा और बोला, मैं आपकी बात का मतलब सही तरह समझा नहीं, क्या आप? मैं समझाई देती हूँ, मैं बोल उठी, और कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, बाकी बकिया कल देखेंगे, और अब इतना वक्त तो नहीं रहा कि हम दोबारा अपने महम पर दहली से बाहर निकल सकें, लेकिन दहली की हदूद में तो कोई कार्रवाई मुमकिन है। क्यों ना आज रात CID हेड ऑफिस को उड़ा दिया जाए? और गुरबचन सिंह का जवाब मेरी तवक्का के मुताबिक था। वैन की बजाय हम कार में चलेंगे, हमारे साथ सिर्फ एक कमांडो जाएगा, राजिंदर। और मैंने तेजी से कहा और उठ खड़ी हुई। फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल नाफज हो गई, और तैयारी के लिए मैंने बहुत कम वक्त दिया, और मैं सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। मैंने महसूस कर लिया कि सलार अकबर कुछ कहना चाहता है, मगर ये बहसो मबासे का वक्त नहीं। और तमाम तर तैयारियों के साथ सलार अकबर, गुरबचन सिंह, आदिल और राजिंदर को और मुझे 10 मिनट के वक्त में कॉन्फ्रेंस रूम में वापस पहुंचना था।
एमुनिशन डिपो उड़ाने के लिए पहले ही सारी तैयारियां मुकम्मल थी और इसी सबब हमें कोठी से रवानगी में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। CID हेड ऑफिस इस ज़माने में पुराने किले के करीब था। रघुवीर और समीउल्लाह की बाजियाबी के लिए मैं पहले भी वहां जा चुकी थी, मगर आज रात की सूरत ज़रा मुख्तलिफ थी और मैंने रास्ते में अपने साथियों को समझाया कि महदूद वक़्त के बावजूद जल्दबाजी से काम नहीं लेना, उसके अलावा कब क्या कदम उठाना है ये भी उन्हें बता दिया और मेरी हदायत के मुताबिक कार को इमारत से खासे फासले पर रोक लिया गया और फिर सरफरोश अंधेरे में रेंग गए। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे कार ही में रहना था। अब मैं भी जाऊं किरण जी, कविता की सरगोशी उभरी और ये पहला मौका था कि मुझसे कोई इस तरह का काम ले रही थी और उसका वजूद अभी तक नादीदा ही था। हाँ जाओ, और तुम्हें जल्द उस लड़की को लेकर लौटना है और उसकी उम्र जहन में रखना, वो 14 साल से ज़्यादा की नहीं। और मैंने जवाब दी और कविता मुझे मुतमिन करके रवाना हो गई। कॉन्फ्रेंस रूम से अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने कविता को जगा दिया था और तैयार करते हुए कमल के बारे में कविता को मैंने सिर्फ ये बताया कि कमल एक बेगुनाह और मजलूम लड़की है, उसे जालिमों की कैद से निकालना है और कविता उस पर फौरन राजी हो गई थी। उसे तो ये खुशी थी कि मेरे साथ कहीं चल रही है और उसे CID वाले हेड ऑफिस का अंदरूनी हिस्सा भी मेरा देखा हुआ था। रघुवीर और समीउल्लाह की बाजियाबी के अलावा चंद रोज पहले मैं स्मारक में जा चुकी थी और CID इंस्पेक्टर जैक भी, जो मेरे हाथों मारा जा चुका था, मुझे वहीं ले गया था। मैं रशीदा को वहां से निकाल लाई थी और जिसे मेरे ही साथ मकतूल जैक ने गिरफ्तार कर लिया था। मुख्तसर कविता को मैंने सब कुछ बता दिया कि इस इमारत में हवालात वगैरह कहाँ और किधर हैं और मुझे तवक्का थी कि कविता को कमल की तलाश में नाकामी नहीं होगी। महदूद वक़्त के सिवा मुझे वक्तन से काम लेना पड़ा और मेरे दिल की धड़कनों में इस वक्त फितरी तौर पर इजाफा हो गया और वो बड़ी सनसीखेज लम्हात थे। कविता की वापसी तक मैं इंतहाई बेचैन रही और वो कामयाब लौटी और मैंने उसकी खुशी में उसकी पेशानी चूम ली। अब वो ज़ाहिर हो चुकी थी और मेरे कहने पर कविता ने उस मासूम और भोली भाली लड़की को अगली और पिछली सीटों के दरमियान लिटा दिया। वो पीछे ही बैठी थी और कार में अंधेरा था और कमल बेहोश थी। मैं समझ गई कि कविता ही ने उसे बेहोश किया होगा। और कोई हुक्म किरण जी, कविता ने मुझसे पूछा। अब तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि तुम वापस कोठी पहुंचकर आराम से सो जाओ, मैं मुस्कुराकर बोली। और आप, उसने सवाल किया। मुझे अभी वापसी में देर लगेगी, मैंने जवाब दिया, और अभी उसे इसके घर वालों तक भी तो पहुंचाना है ना। और मेरी बात अभी ख़त्म हुई थी कि फिजा पहले ज़बरदस्त धमाके से गूंज उठी और डायनामाइट से CID हेड ऑफिस को उड़ाया जा चुका था। ये क्या हुआ किरण जी? तुम जाओ कविता, मैं तेजी से बोली। और कविता को मैंने ये नहीं बताया था कि जिस इमारत में उसे भेज रही हूँ कुछ देर बाद उसके परखच्चे उड़ने वाले हैं। आपको तो कोई खतरा नहीं। और मैंने उसकी बात काट दी क्योंकि किसी भी लम्हे सलार अकबर वगैरह वापस आ सकते थे। फिर कविता वहां से गायब हो गई और मैं दानिस्ता कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़ी हो गई। वापसी में भी आदल ही को कार ड्राइवर करना थी और वो था भी अच्छा ड्राइवर और उसके साथ आगे गुरबचन सिंह बैठता और राजिंदर और सलार अकबर मेरे साथ पीछे बैठते। अगली और पिछली सीटों के दरमियान कमल का बेहोश जिस्म पड़ा था और जल्दबाजी में उसका जिस्म राजिंदर या सलार अकबर के पैरों तले आ सकता था। और मैं यही सोचकर कार से उतरी थी कि उन्हें एहतियात से बैठने की ताकीद कर सकूं। और चंद ही लम्हों बाद मैंने अंधेरे में 4 हेलों को कार की तरफ दौड़ते हुए देखा। जब वो भागते हुए कार के करीब आ गए तो मैंने सलार अकबर और राजिंदर को मुखातब किया। अगली और पिछली सीटों के दरमियान एक बेहोश लड़की भी पड़ी है, संभल कर बैठिएगा। और ये वक़्त किसी वजाहत या सवाल जवाब का नहीं था और वह दोनों अपने फूले हुए सांसों पर काबू पाते ही मेरे साथ कार में बैठ गए। और मौके वारदात से जल्द अज जल्द हमारा फरार हो जाना इंतहाई ज़रूरी था। बाकी बातें बात की थी और धमाके दूर तक सुने गए होंगे और सभी को इल्म था। आदल ने तेज़ी से कार मोड़ी और फिर वापसी का सफ़र शुरू हो गया। CID हेड ऑफिस तक जाने और वापस आने के लिए महफूज रास्तों का इंतखाब किया गया और फिर भी खतरा बदस्तूर था। एक ही रात में ये दूसरा बड़ा हंगामा था और पहला हमला पुलिस पर किया गया और मेरे अंदाजे के मुताबिक उन पुलिस वालों की तादाद 50 से ज़्यादा होगी जो मेरे फेंके हुए दस्ती बमों का शिकार हुए थे। CID हेड ऑफिस में मुआवज़ों और दीगर अमले की तादाद का सिर्फ अंदाज़ा ही लगाना मुमकिन था। मजमूई तौर पर ये दोनों कार्रवाइयाँ ज़्यादा अहम ना होने के बावजूद वक्ती तौर पर ही सही हुकूमत को बौखला देने के लिए काफ़ी थी। उसके अलावा एक थाने में विजय की लाश का फेंका जाना भी हुकूमत के आला हकाम की आंखें खोल देने के लिए कम नहीं था।
इस तरह तंजीम के लिए खतरात तो बढ़ गए थे, मगर दुश्मन को ये ज़रूर बावर कराया गया था कि तंजीम अब सिर्फ अपनी मदाफत ही नहीं कर रही, हुकूमत को दान शिकन जवाबी दे रही है। और सिर्फ हुकूमत ही बेगुनाहों की लाशें गिराना नहीं जानती, जालिमों के एहतसाब का वक्त भी आ गया है। कार तेज रफ्तारी से सफर करते हुए निस्बतन महफूज रास्ते पर आ गई तो असरार अकबर ने पहली बार मुझे मुखातब किया, ये लड़की कौन है? विजय की मजलूम बहन कमल। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, क्या आप भूल गए कि मैंने तो क्या आप उसे? और असरार अकबर यकीनन चकरा कर रह गया और मैं अपने जहन को पहले ही उसके लिए तैयार कर चुकी थी। और गुरबचन सिंह भी अपनी अगली सीट से पीछे देखने लगा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत नजर आई और वह बोल उठा, आप क्या इसीलिए हमारे साथ नहीं गई? और मसरत के पेश नज़र मुझे वो कारनामा अपने सर मुंडना पड़ा। अगर मैं पहले से आप लोगों को यह बता देती कि मेरा इरादा क्या है तो यकीनन कोई भी इस पर राजी ना होता। लेकिन किरण जी, ये तो बड़ा जुल्म किया आपने। और गुरबचन सिंह जज्बाती हो गया। एक गद्दार से किए हुए वादे की खातर आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हम इस इमारत को उड़ाने वाले हैं और ये आपको मालूम था और हमें आपने बेखबर रखा। आप इस इमारत में दाखिल हो गई। छोड़े भी गुरबचन सिंह जी, मौत की घड़ी आने से पहले कौन मर सकता है? और मैं जानबूझकर धीरे से हंस दी। माफ़ कीजिएगा किरण जी, इस मामले में मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं, असरार अकबर ने संजीदगी से कहा। और खुदा न ख्वास्ता किसी भी सबब आप इस इमारत से निकलने में कामयाब ना होती तो क्या होता? और हमें तो खबर भी ना होती कि तो कुछ भी ना होता सलार, मैं मुतमिन आवाज़ में हंसकर बोली। कुछ दिनों तक आप लोग मुझे तलाश करते और फिर चैन की बंसरी बजाने लगते। क्यों गुरबचन सिंह जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? और उससे मेरा मकसद कशीदा फिजा को ख़त्म करना था जो इस गैर मतवक्का वाक़े के सबब पैदा हो गई थी। और ये वाक़ा उन लोगों के लिए बहरहाल गैर मतवक्का ही था। हरगिज़ नहीं। गुरबचन सिंह मेरी बात ख़त्म होते ही बोला, हम लोग इतने भी बेहिस नहीं हैं। और आप भी कमाल करते हैं, चैन की बंसरी बजाने से मेरा यह मकसद नहीं था। मेरा इशारा दुश्मन की बंसरी बजाने से था। और आज रात खासी बंसरी बजी है और मैंने मौजू गुफ्तगू बदलना चाहा। क्यों सलार अकबर, आपका क्या ख्याल है? खासा काम दिखा दिया हमने आज रात। और फिर मज़ीद 2-1 जुमलों का तबादला होने के बाद मौजू गुफ्तगू बदल ही गया। कार जब करोल बाग के इलाके में दाखिल हो रही थी तो मैंने राजेंद्र से पूछा, तुम्हें विजय का घर मालूम है? मुझे सिर्फ ये खबर है किरण जी कि वह सब्ज मंडी के इलाके में कहीं रहता था और तफैल को यकीनन पता होगा कि वैसे तो ये लड़की भी होश में आके अपने घर की निशानदेही कर सकती है, लेकिन शायद फौरी तौर पर इसके हवास काम ना कर सके। और क्या खबर उस पर कितने जुल्म ढाए गए होंगे। और मेरी बात सुनकर सलार अकबर मतवज्जा हो गया और पूछने लगा, फौरी तौर से आपकी क्या मुराद है? आपके ज़हन से शायद ये बात निकल गई, सलार के सुबह होते ही फितने जाग उठेंगे और विजय की लाश के साथ जो स्लिप पिन की गई है वो कम अज़ कम एक शख्स को तो तैश में मुतला कर ही देगी। उससे पहले कि कमल और उसके घर वालों को दहली छोड़ देना चाहिए। खैसानी बिल्ली को अपना खंबा नोचने से तो नहीं रोक सकते। और मेरा इशारा हार्डी की तरफ था जिसे कुत्ता लिखा गया था। हुकूमत और उसके कार पर दराज गरीब और मज़लूम अवाम पर अपनी हाकमियत का रूप कायम रखने वाले के लिए हर मुमकिन हरबा आजमाते हैं, मुझे इल्म था। सलार अकबर मेरी बात समझ गया और बोला, विजय का पता तो सलार वाहिदुद्दीन को फ़ोन करके भी मालूम हो सकता है और तंजीम के पास हर रुकन के पूरे कवायद मौजूद हैं। वैसे बेहतर यही है कि इन हालात में कोई ऐसा शख्स साथ हो जो विजय के घर को जानता हो। और इस वक्त सुबह के 5 बजने वाले थे जब हम वापस कोठी पहुंचे और मेरे और आदल के चेहरों पर तो पहले ही मेकअप था। अलबत्ता तफैल के चेहरे पर मास्क चढ़ाना पड़ा और उसे विजय के घर का पता मालूम था और वहां एक बार जा भी चुका था। दोस्ती को दुश्मनी में बदलते हुए चंद ही लम्हे लगते हैं और विजय और तफैल भी दोस्त थे, मगर जब मालूम हुआ कि विजय का दुश्मन आलाकार बन चुका है तो तफैल की नफरत काबिल दी थी। अपने दोस्त के खिलाफ पहली गवाही उसी ने दी थी। एक मकसद की हसूल पर इश्तराक उन दोनों की दोस्ती का मरकज था। वो कदर मुश्तरक ख़त्म होते ही उनकी राहें भी अलग अलग हो गई थीं। खैर और शर की कोई एक राह भी हो नहीं सकती। दुश्मन और दोस्त के दरमियान वाज़ेह लकीर खींचना पड़ती है और जो लोग ऐसा नहीं करते वो घाटे में रहते हैं। फरेब तो दोस्ती ही के पर्दे में दिया जाता है और विजय का जुर्म यही तो था। कमल को अब होश आ चुका था और वह हैरान सी नज़रों से इधर उधर देख रही थी और मैं उसे लिए अपने कमरे में इसके सामने वाली राहदारी से गुजर रही थी। मेरे पीछे आदल और तफैल थे और वह कुछ घबराई और सहमी थी। होश में आने के बाद मैं कई बार से समझा चुकी थी
कि अब डरने की जरूरत नहीं रही, मगर उसका कोई खास तासर नहीं हुआ। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली कमल किसी वैश्यज्यादा हरनी की तरह दिखाई दे रही थी। कम उम्र होने के बावजूद उसका कद लंबा था और जिस्म छरेरा। आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे और मैं उसे संभाले हुए इमारत के बाहर आके कार की पिछली नशस्त पर बैठ गई। तो फैल आदल के साथ आगे बैठा था और सार्जेंट डेथ के सिवा हमारे पास कोई हथियार नहीं था। मैंने घरेलू हिंदू औरतों की तरह साड़ी बांध रखी थी। आदल और तफैल भी धोतियां बांधे हुए थे। कार की नंबर प्लेट भी एहतियातन तब्दील कर दी गई और मुक्त सिर वक्त में कंवल का मुंह हाथ धुलाकर उसे भी बांधने को दूसरी साड़ी दे दी गई। कविता ने साड़ी बांधने में उसकी मदद की और इन तमाम एहतियातों का मकसद महज ये था कि रास्ते में अगर हमें चेक भी किया जाए तो किसी मुअज़्ज़ज़ हिंदू घराने के अफराद समझा जाए। ऐसी सूरत में हम पर शुबा ना किया जाता और इन तैयारी में जल्दबाजी के बावजूद आधा घंटा लग ही गया। अब सुबह के 5:45 बज रहे थे और रात के मुकाबले में खतरा अब कदरे कम हो गया था और कम अज कम इस हद तक कि सड़कें बिल्कुल वीरान नहीं थीं। शहर जाग उठा था मगर फितने शायद अभी महूखवा भी थे। वक़्त के बारे में अंग्रेज़ों के मर्ज से भी मैं बेखबर नहीं थी और इस दौरान में सलार अकबर मुझे हार्डी के मतलब बात बता चुका था कि वो भी सरकारी मशीनरी का एक अहम पुर्जा था। CID का चीफ वही था और अब तक बज़ाहिर पुलिस और CID ही तंजीम की छोटी मोटी झड़पें रही थीं। और ये उकदा तो मेरे दहली आने के बाद खुला कि सरफरोश तंजीम के खिलाफ पसे पर्दा मोहरित विलियम राइट और रॉबर्ट हीम थे। सलार अकबर और इसीलिए हार्डी से अच्छी तरह वाकफ था। हार्डी भी अपने हम वतनों की तरह वक़्त का पाबंद और इस हद तक ठीक 9 बजे दफ्तर पहुंचने से कबल वो दफ्तरी मामला से कतई लातअल्लक़ रहता और उसने अपने मातहतों को हुक्म दे रखा था कि कैसा ही ज़रूरी मामला क्यों ना हो उसे दफ्तर आने से पहले डिस्टर्ब ना किया जाए। हार्डी के बारे में इन मालूमात के बावजूद मैं चौकन्ना थी कि अब वो दफ्तर ही नहीं रहा था जहां हार्डी साजिशों के मंसूबे बनाता होगा। ये बहरहाल एक गैर मामूली वाक़या था और इस मकान को नज़रअंदाज किया जाना मुमकिन नहीं था कि वक़्त के मामले में हार्डी की असूल परस्ती धरी की धरी रह जाए और उसके ऊपर भी तो कुछ लोग थे जो उससे जवाब तलबी कर सकें। करोल बाग से कार सब्ज़ मंडी के लिए रवाना हुई तो मैंने एक बार फिर कंवल को तसल्ली दी, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे बड़े भाई विजय के दोस्त हैं, बोलो ना तुम। और बड़ी मुश्किल से उसकी ज़ुबान पर पड़ा हुआ कफल खुला, पर भैया कहाँ हैं? उस मासूम लड़की के इस सवाल ने अंदर ही अंदर मुझे जैसे लर्जा दिया और काश मैं उसे कह सकती, कमल अब अपने भाई को भूल जा और तू जिंदगी भर उसकी राह तकती रहेगी और वो कभी नहीं आएगा। तेरा भाई एक ऐसे सफ़र पर जा चुका है जहाँ से कभी कोई पलट कर नहीं आता। और मैं जाने कहाँ खो गई थी कि एक मर्तबा फिर कमल की आवाज़ मेरे समाज से टकराई, आपने बताया नहीं दीदी भैया कहाँ है? और मैं चौंक उठी। उस भोली सी लड़की ने मुझे दीदी यानी बड़ी बहन कहा था और उस एक लफ्ज़ ने जैसे मुझे दिल्ली से कलकत्ता पहुंचा दिया। शांति भी मुझे दीदी ही कहती थी और हुमायूं की हिंदू दाश्ता शांति मेरी ही एमा पर उसने मुसलमान होकर हुमायूं से शादी कर ली थी। शांति की बड़ी बहन बनकर ही मैंने उसे अपनी कोठी से रुखसत किया था और इससे पहले के यादों के गुबार में कमल का चेहरा कहीं गुम हो जाता मैंने खुद को संभाल लिया और जल्दी से बोली, विजय बिल्कुल ठीक है और उसी के कहने पर तो हम तुझे छुड़ा कर लाए हैं। और दीदी वो अंग्रेज़ अब तो मुझे अपनी कोठी पर नहीं बुलवाएगा। और उसकी आवाज़ में सरगोशी की हद तक धीमी थी और उसका नाम हार्डी है। और कमल ने मेरे दिल पर एक और ज़ख्म लगाया और उसके इन अल्फाज ने मुझे उनसे एक अनकही कहानी बयान कर दी। कच्ची कलियां तोड़कर अगर पानी में खिलने को रख दी जाएं तो कमल ही की तरह मुरझा जाती हैं। विजय का अंदेशा गलत साबित नहीं हुआ। अब तुम्हें कोई भी कहीं नहीं बुलवाएगा कमल। और मैंने खुद पर काबू पाते हुए उसकी तरफ झुककर सरगोशी की, और सुनो तुमने मुझे दीदी कहा है ना? और कमल इकरार में सर हिलाया और उसे मैंने बड़ी हद तक अपने एतमाद में ले लिया और मेरी जगह किसी मर्द से शायद वो इतनी जल्दी ना खुलती। तो फिर अपनी दीदी की लाज रखना, किसी से इस वाक़े का जिक्र ना करना। और माजी से भी नहीं, उसने हैरत से पूछा और लहजे में भूलपन था। बिल्कुल नहीं, मैंने ताकीद की और उसे खबर ही नहीं थी कि यह सब कुछ सुनकर उसकी माँ के दिल पर क्या क़यामत गुजर जाएगी। जहाँ थी बता देना, मगर एक तो उस रात का जिक्र ना करना जब पहली मर्तबा तुम्हारे भैया को सामने लाया गया था और जब उन्होंने भैया के सामने मेरे कपड़े फाड़ और वह मज़ीद कुछ ना कह सकी। शर्म या शायद उस वाक़े को याद करके खौफ से कमल चुप हो गई। हाँ, बस ये कपड़े फाड़ने वाली बात और हार्डी की कोठी पर बुलवाए जाने की बातें अपनी माँ जी या किसी को भी ना बताना।
कंवल ने लंबा सांस भरा। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो नहीं कहूँगी। और ये कहते ही उसने एक बार फिर अपने भाई का जिक्र छेड़ दिया। और भैया मुझसे बस एक ही बार मिलने आए थे। हाँ मुझे मालूम है, और दोबारा मिलने क्यों नहीं आए दीदी, उन्हें आना चाहिए था। और उसके लहजे में शिकायत थी और बच्चों जैसी मासूमियत। तुम्हारा भाई तुम्हें दुश्मनों की कैद से रिहाई दिलाने में लगा हुआ था। अच्छा तो ये बात थी। और मुतमईन नजर आने लगी और कोई बड़ी उलझन खत्म हो गई। रास्ते भर मुझसे ऐसी बोली बाली बातें करती रही और सफर तमाम हो गया। सब्जी मंडी मुसलमानों और हिंदुओं की मुश्तरका आबादी थी और वहीं सब्जी की बड़ी और मशहूर मार्केट थी। और उसी वजह से उस पूरे इलाके का नाम सब्ज मंडी पड़ गया था और मुतवस्सित तबके के लोग वहां आबाद थे। मैंने रास्ते ही में कमल से ये बात मालूम कर ली कि घर में सिर्फ उसके माँ बाप होंगे और उसकी माँ का नाम वजंती और बाप का नाम मनोहर था। कार एक तरफ खड़ी करके आदल और तफैल उतर गए। मैं और कंवल कार ही में बैठे रहे और वो दोनों ये सुराग लगाने गए थे कि कहीं विजय के घर की निगरानी तो नहीं की जा रही। और मैंने रवानगी से कबल ही उसी सिलसिले में उन्हें हदायत दे दी थी। उसका मकसद ये भी था कि तफैल विजय के घर की निशानदही कर सके और तफैल को यहाँ तनहा वापस जाना था। दीदी वो दोनों कहाँ चले गए? अब घर चले ना। कंवल चुप न रह सकी। अभी चलते हैं, उन्हें आ जाने दो। और किसी बड़े आदमी या औरत की निस्बत बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल होता है और ज़हनी तौर पर कंवल एक बच्ची ही थी और मैं उसी मुश्किल में गिरफ्तार थी। कुछ देर में वो दोनों कार की तरफ आते दिखाई दिए और तफैल दूर ही से रुखसत हो गया। और आदल करीब आया तो मैं कंवल को साथ लिए कार से उतर गई और किसी गड़बड़ की सूरत में तफैल को आदल के साथ ही कार तक आना था और मैं इसलिए मुतमिन हो गई थी।